Hello, good morning students. How are you? Myself Saurabh Rai from SPS Children Academy, Kalan Jaunpur. Students, in last three lecture, we are discussing the separation methods. The separation methods by evaporation, by sublimation, by separating funnel, and the difference method by chromatography also we had discussed. Now, if you have two miscible liquids, for example, alcohol, water, acetone, water, milk, then how can you separate these mixtures? That is, if you have two miscible liquids, how can you separate two miscible liquids? There are two types of liquid. First one, which have the difference of their boiling point from 30 Kelvin to 50. First one, liquid which have the difference, their boiling point is 30 Kelvin to 50 Kelvin. For example, the boiling point of water is 373 Kelvin and boiling point of acetone, that is 329 Kelvin. Okay, there is difference near about 40 to 45 Kelvin. Now, and the second miscible liquids which have the difference of their boiling point not more than 25 Kelvin. Okay, the liquids which have their boiling point difference not more than 95. For example, water 373 Kelvin and alcohol 351 Kelvin. The difference 2 Kelvin, and the here difference, that is 13 minus 9, that is 4, and 6 44 Kelvin. Now, so we have the two type of liquids. First, liquid who have their boiling point difference more than 30 Kelvin. Second type of liquid who have the boiling point difference less than 25 Kelvin. Okay, for the both type of mixture we use the different procedure, different methods. For first type of procedure we use distillation. Okay, and the second type of that we use fractional distillation. Very important thing. How can you separate two miscible liquids, the mixture of two miscible liquids? That is, depend upon their nature. If the liquids, their boiling point difference more than 30 Kelvin, you use simple distillation. And if the difference is less than 25 Kelvin, that is fractional distillation. In other words, by distillation method, what type of particle can be separated? What type of mixture can be separated? By
distillation method, what type of particles separated? Your answer will be, sir, by distillation method we can separate mixture of two liquids who have their boiling point difference more than 30 Kelvin. Other question, what type of mixture can be separated by the fractional distillation? Sir, by fractional distillation we separate the liquids, the mixture of liquids who have the difference of boiling point less than 25 Kelvin. इस तरह से पूछा जाता है. अब ये डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, चलिए. फर्स्ट, डिस्टिलेशन. फर्स्ट मेथड डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन का जो पहला पॉइंट है, it used for mixture of two miscible liquids and their boiling point difference more than 30 Kelvin. इसके लिए ये यूज होता है. ठीक है. एंड होता क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका? इन दिस मेथड more volatile liquids change into vapor, and by condensation it can be liquefied in other beaker. That is the principle. Students, let us take the procedure. This is the clamp, this is the stand and burning stand, wire gauge, your burner, round bottom flask, that is the condenser, that is stand, that is clamp. This one is round bottom flask. Okay, that is the system setup for the distillation. We are talking about the simple distillation. First, this is the mixture of water and acetone. Water boiling point 373 Kelvin. Acetone boiling point 329 Kelvin. Okay, we take the mixture in round bottom flask. When we heat the round bottom flask with the help of burner, the more volatile component which are the more volatile vaporized first. होगा क्या, यहां आपने एक थर्मामीटर लगा लिया, that is थर्मामीटर. चलिए, अब जैसे आपने इसको हीट देना स्टार्ट किया, ठीक है, हीटिंग के बाद क्या होगा कि इसकी वेपराइजेशन, वेपर कन्वर्ट होगा और इस थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज करना लगेगा. ठीक है, जैसे वेपर क्रिएट होते होते जैसे ही इस राउंड बॉटम फ्लास्क का वेपर प्रेशर
इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, जो आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, बॉयल करने लगेगा। कौन? फर्स्ट एसीटोन। जैसे ही इस थर्मामीटर का टेम्परेचर 329 होगा, ये जो आपका एसीटोन है वो क्या करने लगेगा, ये आपका बॉयल करने लगेगा, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स वेपर क्रिएट होगी, वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, उसके बाद जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आपका ये वेपर प्रेशर होगा, वैसे ही आपका लिक्विड बॉयल होने लगेगा और बॉयल होके मैक्सिमम अमाउंट जो है वेपर इस कंडेंसर में जाएगी। अब टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर जैसे ही 329 हुआ वैसे ही तो ये बॉयल करने लगेगा। तब टेम्परेचर राइज नहीं होगा, जब पूरा का पूरा ये बॉयल हो जाएगा, बॉयल होके कंडेंसर में आ जाएगा, तब इसका टेम्परेचर वहीं से फिर से बढ़ने लगेगा। तो 329 पहुंचा टेम्परेचर, पूरा 329 पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, आप हीट देते रहेंगे, लेकिन वहां से क्या होगा, वहां से एसीटोन निकलता रहेगा। अब एसीटोन यहां से निकलेगा, वेपराइज होगा, कंडेंसर में आपका कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। कंडेंस होके यहां पे आपको लिक्विड फॉर्म में सबसे पहले क्या मिल जाएगा, एसीटोन। फिर आप इस बीकर को रिप्लेस कर देंगे, फिर आप दूसरा बीकर लगा देंगे, फिर से आप हीट दे रहे हो, फिर थर्मामीटर पे टेम्परेचर राइज होगा और टेम्परेचर जैसे ही 373 पहुंचेगा, वैसे आपका क्या करेगा, वाटर बॉयल करने लगेगा, ठीक है। और जब वाटर बॉयल करेगा तो फिर आप इसको थ्रू कंडेंसर पास करवाओगे और यहाँ पे आप अदर बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से मिक्सेबल लिक्विड्स को विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन आप सेपरेट कर सकते हो। अगेन फिर से देख लेते हैं क्या करेंगे। ये हमारा पूरा सिस्टम सेटअप है, इसमें आपका ये क्लैंप है, ये आपका क्लैंप स्टैंड है, ये आपका वायर गेज है, वायर गेज देखा होगा आपने लेबोरेटरी में, ठीक है। ये आपका बर्नर है, बुनसेट बर्नर भी बोलते हैं आप इसको, ये आपका ट्राइपैड स्टैंड है, ठीक है। ये आपका कंडेंसर है, ये आपका स्टैंड है, ये आपका बीकर है, ठीक है। इसमें दो लिक्विड है, कौन कौन से हैं, वाटर है और एसीटोन है। एसीटोन हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग, फर्स्ट the temperature of thermometer will raised and at 329 Kelvin acetone will boil but water not boil। क्यों? क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 है। तो जब एसीटोन बॉयल करने लगेगा, बॉयल कर जैसे ही एसीटोन बॉयल करेगा, इसका जो टेम्परेचर रेज हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। अब उस टेम्परेचर का यूज क्या होगा, चेंज इन स्टेट में। ध्यान रखिएगा, जब 323 पहुंचेगा टेम्परेचर, तब एसीटोन बॉयल होगा और जब तक पूरा का पूरा एसीटोन बॉयल होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा। इधर एसीटोन वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा पूरा का पूरा और कंडेंसर के थ्रू आप इसको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में अलग कर लेंगे। फिर पूरा एसीटोन चला गया, फिर से थर्मामीटर का टेम्परेचर राइज होगा और थर्मामीटर का टेम्परेचर राइज होते होते जैसे ही यह टेम्परेचर 373 पहुंचेगा, वैसे ही फिर से रेज होना बंद हो जाएगा और फिर क्या होगा, वाटर बॉयल होने लगेगा और वाटर पूरा का पूरा बॉयल होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कंडेंसर में जाएगा और उसको अदर बीकर में आप कलेक्ट कर लोगे। तो दैट इज द सिंपल डिस्टिलेशन मेथड्स। जनरली द क्वेश्चन राइज, व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, व्हाट इज द मेथड्स ऑफ डिस्टिलेशन यूज, ठीक है। तो सीधा सीधा है, इट यूज फॉर द मिक्सचर ऑफ two miscible liquids and their boiling point difference more than 30 Kelvin. Or in this method, more volatile liquids change into vapor and by condensation it can be liquefied in the other beaker and less volatile liquids vaporize at last. Okay, now come on the next methods that use, that is the distillation na, distillation। Next method is fractional distillation। Fractional distillation,
बेटा सारा का सारा सिस्टम सेटअप आपका यही होता है, पूरा जो आपने सिस्टम सेटअप किया हुआ है, पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप यही होता है। बस आप करते क्या हो, यहाँ पे ये जो आपका थर्मामीटर है, इसके थ्रू एक आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और ये जो आपका स्टैंड है ये पूरा का पूरा इसको ये कवर कर लेता है। ये ठीक है। पहली बात ये कि इसका यूज कहाँ होता है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट the mixture of two miscible liquid and they have the difference of boiling point not boiling point less than 25 Kelvin. Example, water 373 और alcohol 351. The difference 22 Kelvin. अब देखिए क्या करते हैं आप। अब इसमें क्या है, अब इसमें वाटर है और एल्कोहल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। द डिफरेंस इज वेरी लेस, इट मीन्स देन व्हेन वी हीट द टेम्परेचर विल राइज ऑफ द मिक्सचर का टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। और जैसे ही टेम्परेचर 351 होगा वैसे ही जो हमारा एल्कोहल है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट 351 पे वाटर का भी वेपराइजेशन अच्छी क्वांटिटी में होगा। वाटर बॉयल तो नहीं करेगा, बट 351 इज द टेम्परेचर, सफिशिएंट टेम्परेचर टू वेपराइज द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या होगा, तब पता लगा वाटर और अल्कोहल दोनों साथ साथ वेपराइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपका ये आपने ये लगाया है कंडेंसर, इस कंडेंसर का जो सेटअप होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इस बार जो कंडेंसर आपका होगा वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से होकर आएगा। ये आपका, ठीक है। ये ठीक है। होगा क्या कि जैसे ही आप हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे, ये मिक्सचर किसका है, वाटर और एल्कोहल का है, तो टेम्परेचर राइज करेगा थर्मामीटर का, और इसमें ये आइस फिल है, ठीक है, ये आपका आइस।
तो टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर जैसे ही 351 होगा, एल्कोहल तो बॉयल होना स्टार्ट कर जाएगा और एल्कोहल की मैक्सिमम वेपर क्रिएट होना चाहिए। बट ये जो वाटर है इसका भी कुछ पार्ट वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर में कन्वर्ट हो गए एल्कोहल और वाटर दोनों की वेपर यहां पे जाएगी। बट ज्यादा वेपर किसकी क्रिएट होगी? ज्यादा वेपर एल्कोहल की क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि ये लेस वोलाटाइल है, ये कम टेम्परेचर पे ही वेपराइज होने लग रहा है। चलिए अब यहां पे क्या हुआ कि मान लीजिए 5 ग्राम एल्कोहल की वेपर बन रही है तो 1 ग्राम जो है वाटर की जरूर बनेगी। अब करेंगे क्या कि जब इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास करेंगे तो जो 5 ग्राम एल्कोहल है, 5 ग्राम एल्कोहल है यहाँ पे कूल होगा, लेकिन पूरा का पूरा कूल नहीं हो पाएगा। 1 ग्राम 2 ग्राम कूल होगा और जो बाकी पार्ट है वो आपका कंडेंस होकर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। फायदा क्या हुआ इसको लगाने से? इसको लगाने से फायदा हुआ कि जो 1 ग्राम वाटर आपका क्या हुआ था, एक वाइपर में कन्वर्ट हुआ था, यहाँ आइस बाथ में जाके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाके वो फिर से कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो कलेक्शन मिलेगा आपको, ये एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की हेल्प से इसको कंडेंस करवा लिया है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होता है कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में अगर आपका लेस वोलाटाइल लिक्विड है तो वो कंडेंस होके फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या मेथड्स क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स हु हैव देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन। होगा क्या कि अब वाटर एसीटोन का मिक्सचर लिया आपने, बॉयल किया 351 पे, एल्कोहल आपका बॉयल होने लगेगा, बट 351 इज द सफिशिएंट टेम्परेचर टू क्रिएट द वेपर ऑफ वाटर। तो वाटर की भी वेपर क्रिएट होने लगेगी, बट मैक्सिमम जो वेपर क्रिएट होगी एल्कोहल की। अब क्या तरीका ऐसा अपनाएं कि हमें एल्कोहल के साथ वाटर का मिक्सचर ना मिले? तो हम यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिए। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो जो आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है वो क्या करेगा, वो जो वाटर की थोड़ी सी वेपर आई है यहाँ पे, क्यों थोड़ी आई? क्योंकि अभी उसका टेम्परेचर 373 नहीं पहुंचा है, उसको कूल करके फिर से वाटर में कन्वर्ट कर देगा। और थोड़ा बहुत हो सकता है अल्कोहल की, बट मैक्सिमम अल्कोहल आ जाएगा, आपका कंडेंस होगा और यहाँ पे आपका इस बीकर में आप अल्कोहल कनेक्ट कर लोगे। आफ्टर दैट पूरा का पूरा जब 351 पे पूरा का पूरा अल्कोहल कलेक्ट कर लेंगे तो जब आप हीट करते रहेंगे तो फिर वाटर भी वेपराइज होने लगेगा और फिर आप वाटर कलेक्ट कर सकते। दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों बोला जाता है? बिकॉज वी यूज इन दिस मेथड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, दैट इज द सेपरेशन मेथड ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड्स। कितने टाइप के लिक्विड होते हैं? 2 टाइप के। एक तो वो जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 30 केल्विन से ज्यादा होता है, एक वो जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है। ठीक है, दैट इज द ऑल अबाउट द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।